हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अभी तक ये तो पढ़ा कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बड़ा रोल प्ले करता है। और वहाँ पर हमने ये भी जाना कि किस तरह से जो सेंस नर्व्स जो होते हैं, सेंसरी नर्व्स जो होते हैं, वो हमारे सेंस ऑर्गन्स से मैसेज को हमारे स्पाइनल कोड या ब्रेन तक कैरी करने का काम करते हैं। आज के लेसन में हम लोग इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे, वो क्या काम करते हैं वो जानेंगे, और साथ ही साथ हमें कैसे उनका ध्यान रखना चाहिए वो भी हम लोग सीखेंगे। सेंस ऑर्गन्स जो है वो कह सकते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हमारे विंडोज की तरह काम करती है, राइट। वो जो है हमें अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर करते हैं। हम देख सकते हैं चीज़ों को या सुन सकते हैं साउंड्स को, या स्मेल हम कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या फील करते हैं जो अपने स्किन के जरिए। ये सब सेंस ऑर्गन्स की वजह से ही है। और आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी बॉडी में जो है 5 सेंस ऑर्गन्स हैं: आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। तो हम इनके बारे में जो है अब डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम ये एनिमेशन देखते हैं। Nervous system, the sense organs. The special organs of the body that help us to be aware of our surroundings are called the sense organs. To be able to know about all what goes on around us, we need to see, hear, smell, taste and feel. The 5 sense organs that help us do this are eyes, ears, nose, tongue and skin. Let us learn more about these organs. So students, can you name the 5 sense organs? क्या आप 5 सेंस ऑर्गन्स का नाम बता सकते हैं? Fantastic. And their functions. Eyes are the sense organs of sight. The eyes are fitted into 2 sockets in the skull to protect them from damage. Light rays coming from an object enter the eye through pupil, which is a small opening in the iris. The lens, present behind the pupil, focuses the light on the innermost part of the eye called retina. An inverted image of the object is formed on the retina, and then this message is sent to the brain through the optic nerve, after which we are able to see the object straight. Brain through the optic nerve. So students, यहाँ पर आपने क्या देखा, हमारा आई जो है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पर आइरिस में एक हल्का सा छेद है, उस रास्ते से लाइट जो है वो अंदर एंटर करेगी, लेंस पर पड़ेगी। लेंस जो है वो फिर क्या करेगी, तो इस लाइट को जो है फोकस करेगी पीछे रेटिना पर, जहां पर कि एक इन्वर्टेड यानी कि जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका उल्टा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इमेज फॉर्म होगा। ये इमेज जो है फिर किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, इन ऑप्टिक नर्व्स के जरिए जो है ये इमेज जो है वो फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है, जहां हमारा ब्रेन जो है इसे सीधा करके जो है समझ लेता है। After which we are able to see the object straight. Ears are the sense organs for hearing. The external ear or pinna helps to catch sounds. The sound then travels through the middle ear to the inner ear, from where the auditory nerve carries these messages to the brain, after which we are able to hear the sound. Nose is the sense organ for smell. Nerve endings of the olfactory nerves present in the upper part of the nose help to carry messages to the brain, and thus we are able to smell different things. Tongue is the sense organ for tasting. Taste buds present on the tongue have nerve endings that identify 4 major tastes, that is, sweet, sour, salty, and bitter. Messages are sent by these nerve cells to the brain, and thus we are able to interpret the taste of food. Skin is the largest sense organ of our body. Countless nerve endings present in the skin detect various messages like those of pain, heat, pressure, temperature, and touch.
The messages are then carried to the brain by the nerves to be interpreted correctly. All these sense organs are precious. We should take very good care of them. सो वेल स्टूडेंट्स, आपने इन सभी सेंस ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में तो जान ही लिया और अब काफ़ी आपको समझ में भी आया होगा। चलिए दोबारा एक बार इन चीज़ों को हम फिर से जो है रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारी जो देखने की एबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? हमारे आइज पर। हमारा आई जो है उसमें मेनली आई बॉल्स होते हैं जो कि हमारे स्कल के सॉकेट में फिक्स्ड होते हैं, राइट, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे जो है आई लैशेज मौजूद होते हैं। आई लैशेज जो है वो हमारे आंखों को जो है साफ रखने में और डस्ट फ्री रखने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे आइज का डिफरेंट पार्ट है। तो सबसे आगे यहाँ जो है कॉर्निया हुआ जो कि आउटर ट्रांसपेरेंट लेयर हुआ जो कि आइज के विजिबल पार्ट को जो है कवर करता है। इसके नीचे जब हम मूव करते हैं, सो हियर इज द आइरिस। आइरिस के नीचे फिर क्या मौजूद है? हमारा प्यूपिल। ये जो है स्मॉल ओपनिंग है आइरिस के सेंटर में, इसी के रास्ते जो है लाइट अंदर जाएगी। अब लाइट जो ये अंदर जाती है तो इधर क्या अटैच्ड है? हमारा लेंस है। प्यूपिल्स के ठीक पीछे जो है लेंस हमारा मौजूद होता है। ये लेंस जो है वो क्या करता है? तो वो जो है इस लाइट को जो है पीछे कहाँ रेटिना तक पहुंचाता है। ये आइस का सबसे अंदर वाला जो है लेयर होता है, यही वो स्क्रीन की तरफ फंक्शन करता है जिस पर कि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो फॉर्म होता है। ये इमेज जो बनता है यहाँ पर ये जो है इन्वर्टेड यानी कि उल्टा इमेज होता है। रेटिना से ये मैसेज जो है ऑप्टिक नर्व्स के जरिए जो है हमारे ब्रेन तक जाता है। ब्रेन जो है इस उल्टे हुए इमेज को सीधा करके जो है फिर देखता है या समझता है और इस तरीके से हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो पूरा प्रोसेस अब आप समझ गए हाउ द ह्यूमन आई वर्क्स, राइट? नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट अनदर सेंस ऑर्गन, दैट्स द ईयर्स। ईयर्स जो है वो हमें हमारे आसपास के साउंड्स को सुनने में हेल्प करता है। जो आउटर ईयर होता है पिन्ना, वो जो है साउंड वेव्स रिसीव करता है और उन्हें जो है इनर ईयर तक भेजता है। ये ईयर जो होता है वो हमें हमारे बैलेंस को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज नोज। नोज जो है वो हमें डिफरेंट स्मेल्स वगैरह को सूंघने में जो है हेल्प करता है, राइट? कोई खुशबू है, गंध है, ये सूंघने में जो है हमें नोज हेल्प करता है। जो अपर पार्ट ऑफ नर्व होता है वहां पर नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं। इन नर्व एंडिंग्स को या इन नर्व्स को कहते हैं ओल्फैक्टरी नर्व्स। तो ओल्फैक्टरी नर्व्स कहाँ मौजूद है बच्चों? हमारे नोज में। ये नर्व्स जो हैं वो स्मेल के प्रति सेंसिटिव होते हैं और ये जो है उस स्मेल के मैसेज को जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है और तब जो है हम किसी चीज का स्मेल जो है हम जान पाते हैं। नोज जो है वो हमें ब्रीथ करने में भी हेल्प करता है यानी कि सांस लेने में भी हेल्प करता है। नोज के बाद नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज द टंग। टंग जो है वो हमें फूड का स्वाद चखने में हेल्प करता है और इसके अलावा डिफरेंट टेस्ट के बीच जो है डिस्टिंग्विश करने में भी जो है ये हेल्प करता है। टंग जो है वो हमें साफ साफ बोलने में भी हेल्प करता है। अब टंग के ऊपर आपने एनिमेशन में भी देखा होगा छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, राइट? और जो नर्व सेल्स मौजूद होते हैं इन टेस्ट बर्ड्स में वो हमें 4 मेजर टेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 मेजर टेस्ट? स्वीट, सॉर, सॉल्टी एंड बिटर। नर्व सेल्स जो है वो इन सिग्नल्स को ब्रेन के पास भेजता है। ब्रेन जो है वो इन मैसेजेस को जो है या टेस्ट को इंटरप्रेट करता है। इसके अलावा और इससे हम समझ जाते हैं कि फूड का स्वाद जो है वो कैसा है। इसके अलावा बच्चों टंग जो है वो हमें चबाए हुए फूड को मिक्स करने में भी हेल्प करता है। और एक चीज आप जानते हैं कि जो सेंस ऑफ स्मेल है और टेस्ट ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। हम फूड का स्वाद तब बेहतर तरीके से ले पाते हैं जब हम उन्हें सूंघ भी पाते हैं। तो कोल्ड वगैरह की वजह से जब हमारा नोज ब्लॉक्ड होता है तो ऐसे में हमें फूड का स्वाद भी जल्दी नहीं पता चलता है। ओके, अब चलिए आगे हम स्किन की बात करें। तो स्किन जो है वो हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है और हमारे बॉडी को जर्म्स और डर्ट से प्रोटेक्ट करता है। स्किन में मिलियंस ऑफ नर्व्स मौजूद होते हैं जो कि हमें पेन, प्रेशर, हीट, कोल्ड ये सब डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं।
नर्व्स जो है वो स्किन से इस मैसेज को रिसीव करता है और इसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरीके से आप कहें तो स्किन जो है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन भी है। हमारे स्किन पर छोटे छोटे टाइनी पोर्स भी मौजूद होते हैं। ओके, ये टाइनी पोर जो है इनके रास्ते से स्वेट या पसीना जो है वो बाहर निकलता है और जिससे हमारी बॉडी का कूलिंग प्रोसेस जो है वो हैंडल होता है। ओके, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है। तो चलिए, हमने जो है स्किन के बारे में भी जान लिया। दिस इज द स्ट्रक्चर हियर, राइट। तो नर्व एंडिंग यहाँ पर देख रहे हैं, स्किन लेयर के ठीक नीचे जो है नर्व एंडिंग्स फैले हुए हैं। तो स्किन पर जो भी सेंसेशन होगा उनको ये नर्व एंडिंग जो है वो फील करेगा और इस मैसेज को लेके कहा जाएगा हमारे स्पाइनल कोर्ड और ब्रेन के पास। अब हमें ये जानना है कि हमें इन सेंस ऑर्गन्स का केयर कैसे करना चाहिए। अब चूंकि सेंस ऑर्गन्स हमारे बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, तो इसलिए हमें उनका बढ़िया से ध्यान भी रखना चाहिए। तो पहले हम बात करें आइज की। तो हमें जो है काफी ज्यादा या काफी डिम लाइट में जो है नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर जो गाड़ियां वगैरह जो चलती होती हैं तो उन चलती हुई गाड़ियों में भी हमें जो है नहीं पढ़ना चाहिए। इससे हमारी आइज पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। हमें अपनी आंखों को जो है दिन में 2-3 बार साफ पानी से धीरे धीरे आराम आराम से धोना चाहिए, ताकि जो है डस्ट वगैरह इससे निकल जाए। आंखों को रब नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है ना, हम आंखों में ऐसे ऐसे रगड़ने लगते हैं आंखों को, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें जो है टेलीविजन बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, या फिर कंप्यूटर के सामने हमें काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए। हमें टेलीविजन हमेशा 6 फीट की दूरी से ही देखना चाहिए, टेलीविजन के बिल्कुल पास बैठ के नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट इज ईयर्स। तो कभी भी जो है टूथपिक या हेयर पिन वगैरह अपने ईयर्स में आप ना इंसर्ट करें। ये जो है काफ़ी डेंजरस हो सकता है और इसकी वजह से आपके ईयर्स में इन्फेक्शन हो सकता है। हमेशा सूखे कपड़े का प्रयोग करें अपने कान को पोंछने के लिए, और कभी अपने कान में जो है पानी ना एंटर होने दें, और अगर पानी चला जाए गलती से तो पानी को बाहर निकालें आप। नोज। तो हमें जो है अपने नाक को जो है हर एक दिन जो है ब्लो करके साफ करना चाहिए। ओके, इसके अलावा जो है अपनी उंगलियां, पेंसिल या मैच स्टिक वगैरह को नोज में नहीं डालना चाहिए। हमेशा जो है अपने नाक के रास्ते ही हमें सांस लेना चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर मौजूद जो हेयर होते हैं वो डस्ट वगैरह जो मौजूद होता है ना एयर में उसको वो ट्रैप करता है, और इससे साफ हवा जो है वो हमारे लंग्स तक जाती है। टंग की बात करें अब हम, तो हमें अपने टंग को हर एक दिन जो है आराम से टंग क्लीनर की हेल्प से जो है साफ करना चाहिए। इससे टंग पर मौजूद जो जर्म्स होते हैं वो हट जाएंगे, क्योंकि ये जर्म्स जो है वो हमें हमारे खराब स्मेल का रीजन होते हैं, है ना। तो अगर हम टंग क्लीनर से इन जर्म्स को हटाते रहेंगे तो हमें बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम ना होगी। इसके अलावा जो है हमें बहुत ही हॉट और स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारा टंग जो है वो जल सकता है, डैमेज्ड हो सकता है। स्किन की बात करें तो हमें जो है हर एक दिन नहाना चाहिए। वी शुड हैव अ बाथ एवरी डे, ताकि हमारा स्किन जो है वो क्लीन रहे। ओके, जब हम नहाते हैं, बात करते हैं जब हम, है ना, तो बेदिंग की वजह से क्या होता है, तो स्वेट, डेड स्किन सेल्स, डर्ट, बैक्टीरिया, ये सब हमारे स्किन से हट जाते हैं, तो हमारा स्किन जो है वो साफ हो जाता है। तो इस तरीके से हमें अपने स्किन का जो है केयर करना चाहिए बढ़िया से। अगर स्किन पर कभी कट लग जाए या फिर जो है ब्रूज हो जाए, नहीं छिला जाता है, तो ऐसे में जो है हमें उसका ढंग से जो है इलाज करना चाहिए, और हमें हमेशा जो है साफ और कंफर्टेबल कपड़ा पहनना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने अपनी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि हमारे नर्वस सिस्टम में जो है ब्रेन, नर्व्स और स्पाइनल कोर्ड, ये मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन का 3 पार्ट है। सेरेब्रम सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसके नीचे जो है हमारा सेरेबिलम मौजूद होता है, और सबसे नीचे जो है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है, जो कि सेरेब्रम से कनेक्ट होते हुए नीचे जो है स्पाइनल कोर्ड में फ्यूज हो जाता है। नर्व्स जो है नीचे जो है हमारा स्पाइनल कोर्ड होता है, जो कि ब्रेन के साथ जो है अटैच्ड होते हुए नीचे की तरफ आता है, और फिर जो है हमारे बैकबोन के बिल्कुल एंड तक ये फैला होता है। इससे होके जो है बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, राइट। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड से कनेक्टेड ढेर सारे नर्व्स होते हैं, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। ये नर्व्स 3 टाइप्स के होते हैं। सेंसरी नर्व्स, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन्स से मैसेज को हमारे स्पाइनल कोर्ड या ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मोटर नर्व्स, जो कि हमारे ब्रेन या स्पाइनल कोर्ड से मैसेज को जो है हमारे मसल्स तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में कोई मूवमेंट होता है।
और इसके अलावा जो है मिक्स्ड नर्व्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी से जो है मैसेज को स्पाइनल कोड या ब्रेन तक भी पहुंचाते हैं और साथ ही उनके मैसेज को जो है हमारे मसल्स तक भी पहुंचाने का काम करते हैं। स्पाइनल कोड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। जब कभी कुछ इस तरह का अचानक वाला इंसिडेंट हो जाए, जैसे कि किसी कटीली चीज पर आपकी उंगली पड़ जाए या फिर जो है गर्म चीज को आप छू लें, तो ऐसे में अचानक से आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है। इस तरह के मूवमेंट को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इस केस में जो है इंफॉर्मेशन जो है वो सीधा सेंसरी नर्व से जो है स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से सीधा मोटर नर्व तक जाता है। इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी पहुंचता है लेकिन वो बाद में जाता है। ओके कुछ जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन के द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं, जैसे कि हमारे आंख का अचानक से बंद हो जाना किसी खतरे की कंडीशन में, या फिर जो है हमारे मुंह से पानी आ जाना। सो दैट वाज इट अबाउट द नर्वस सिस्टम। अब आप चैप्टर एंड एक्टिविटीज को पूरा करके अपने अंडरस्टैंडिंग को और बूस्ट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से अपने नर्वस सिस्टम के बारे में जान सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वेल दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। बाय बाय।